the autonomy of academic institutions and actually protect the autonomy of academic institutions like I am. And I firmly believe that if you accept the responsibility of managing an academic institution, then as the leader of the institute, it is your responsibility to protect the institute from all kinds of external threats, no matter from which direction they emanate. अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापन शिक्षा के प्रति आपके द्वारा दिए गए असीम योगदान के लिए आपको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। Generally, I have tried all my life to pursue excellence in whatever activities that I've done. Building academic brands, raising the level of excellence in an academic institution. Because I personally feel that improving the quality of higher education and therefore producing highly skilled manpower who are trained in various professional skills is the most important challenge that this country is facing today and will continue to face over the next few decades. आप जैसे विद्वत्तापूर्ण एवं काबिल व्यक्तिमत्व को भारत अस्मिता आचार्य श्रेष्ठ यह पुरस्कार प्रदान करते हुए हम कृतज्ञता और गर्व महसूस करते हैं। भारत अस्मिता आचार्य श्रेष्ठ डॉक्टर बकुल ढोलकिया। Dr. Bakul Dholkia with a big applause for this Bharat Asmita Acharya Shrestha Puraskar. Former Director of Indian Institute of Management, Ahmedabad. The best teacher in management. And a check worth 1,25,000. And the bouquet. अगला पुरस्कार भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ पुरस्कार एक ऐसे व्यक्तित्व को दिया जा रहा है जिसे आप हर रोज देखते हैं टेलीविजन पर, आज सजीव अपने सामने देख रहे हैं। यह हैं प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी दिलीप सरदेसाई और नंदिनी सरदेसाई के पुत्र, स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी जिनका नाम है राजदीप सरदेसाई। उन्नीस 1990 के दशक में देश के टेलीविजन क्षेत्र में समाचार चैनलों ने बड़े पैमाने पर प्रवेश किया। इस क्रांति से देश के कई पत्रकारों को अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्भीड़ और निष्पक्ष पत्रकारों की फहरिस्त में एक नाम बहुत जल्द उभर कर सामने आया। वह नाम था राजदीप सरदेसाई। श्री राजदीप सरदेसाई ने मुंबई तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तालीम हासिल की। आप स्वयं क्रिकेट में रुचि रखते हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सन 1988 में आपने पत्रकारिता शुरू की और जल्द ही आपने एक विश्लेषक पत्रकार के रूप में नाम कमाया।
I think I just enjoy the process of news gathering. I am a complete news junkie, so I enjoy news and the process of gathering news. NDTV द्वारा पेश किए गए स्टार न्यूज चैनल के समाचार पत्रों द्वारा आप लोगों के सामने आए। NDTV चैनल जब स्वतंत्र रूप से प्रसारित होने लगा, तब आपकी प्रतिभा ने एक नई उड़ान भरी। आपके द्वारा सादर किया गया द बिग फाइट यह कार्यक्रम लोकप्रियता की शिखर तक पहुंचा और उसे कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। I think the most satisfactory achievement of my life has been the recognition that some of my peers and colleagues have given me. I think I value nothing more than the recognition of my professional colleagues. विश्व की एक बड़ी समाचार एजेंसी CNN के साथ मिलकर आपने CNN IBN नाम का चैनल शुरू किया है, जो बहुत ही कम समय में लोकप्रिय हो चुका है। किसी भी सामाजिक, राजकीय या अन्य समस्या पर टिप्पणी करते समय आप उसके हर पहलू पर प्रकाश डालते हैं, जिससे आपकी निष्पक्षता का यथोचित प्रदर्शन होता है। Our philosophy is to be totally dispassionate and uncompromising with our news coverage, free of any bias or any prejudice. इस चुनाव में जो जीते हारे इसका मतलब पूरी तरह से देश की राजनीति बदल जाएगी, इस पर मैं अभी तक विश्वास नहीं रखता। I think we have a wonderful constitution. The problem has been implementing that constitution. Here with Captain Kumble, we are here in Bangalore or Bengaluru with the city's favorite son. We want to report this story free of any favor and free of fear. My aim, as I said in life, is to keep getting better and doing it in the right way. I think it's not just important to do things to get better in life, but to do it in a right way, so that you do it according to your conscience. देश विदेश की कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ आपकी हुई भेंट वार्ताएं आदर्श पत्रकारिता का सक्षम उदाहरण है। पत्रकारिता के प्रति आपके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने इसी साल आपको पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान किया है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व श्री राजदीप सरदेसाई को भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ का पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए हम प्रसन्नता महसूस करते हैं। भारत अस्मिता जन जागरण श्रेष्ठ श्री राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई। And now, the best young exponent of parliamentary practices. Shri V.J. Panda, Honorable Member of Parliament, Bharat Jana Pratinidhi Shrestha. भारत के राजनैतिक क्षितिज पर चमकते हुए युवा नेताओं में से एक प्रमुख नेता हैं श्री बैजयंत तथा जय पांडा। राज्यसभा में आप बीजू जनता दल पक्ष के नेता हैं। उड़ीसा राज्य के राजनीतिक इतिहास में स्वर्गीय श्री बिजू पटनायक ने अपने प्रखर व्यक्तित्व से अनेक अनुयायी निर्माण किए, जिनमें से एक हैं श्री जय पांडा। मैं बिजू पटनायक साहब को
मानता हूं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो उड़ीसा जैसे बैकवर्ड स्टेट होते हुए भी 50 साल पहले सारा भारतवर्ष में उनका एक नाम बना। 44 साल के श्री पांडा अभियांत्रिकी तथा व्यवस्थापन की दोहरी डिग्री अमेरिका के मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर चुके हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बट ऑल ऑफ देम मस्ट बी कनेक्टेड टू द कोर इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया ड्यूरिंग आवर जनरेशन। आप स्वयं एक पायलट हैं तथा राजनीति के साथ बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग आदि साहसी खेलों में भी रुचि रखते हैं। वैसे मैं एक प्राइवेट पायलट हूं, तो मैं थोड़ा बहुत फ्लाइंग करता हूं जब मौका मिलता है। अदरवाइज मैं पढ़ता हूं, हर महीना को कम से कम 1-2 नए किताब पढ़ता हूं और मैं नॉन फिक्शन प्रेफर करता हूं। युवा उम्र में ही आप राज्यसभा के अनेक समितियों पर बतौर सदस्य काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप उड़ीसा राज्य में कई सरकारी तथा निजी संस्थाओं के सदस्य रह चुके हैं। एक अच्छी बात यह है कि यंग ब्रिगेड में बहुत सारे एजुकेटेड मेंबर्स हैं और ये दे कम फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फ्रॉम वेरियस पार्टीज। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। मैं अपने आप को एक ऑलराउंडर जैसे डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैं मिड कैरियर में मैंने पॉलिटिक्स में शामिल हुआ, तो मेरा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैकग्राउंड, और इन पॉलिटिक्स ऑल्सो आई हैव टेकन एन इंटरेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो मैं पहले इसके बारे में इतना नहीं जानता था। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता का स्तर जल्द से जल्द ऊपर उठे, इसके प्रति आप हमेशा से कार्यान्वित रहते हैं। मेरा सपनों का भारत यह है कि हमारी जनरेशन में हम पॉवर्टी को टैकल कर सकें। अभी देखिए, हर साल कोई 1% हमारा जो पॉपुलेशन पॉवर्टी से ऊपर उठते हैं। इसी रेट में और बहुत समय लगेगा। हम कोशिश करना चाहिए कि इसी जनरेशन में आने वाले 10-20 सालों में हम अगर हर साल 2 या 3% हमारा पॉपुलेशन पॉवर्टी के ऊपर, पॉवर्टी का लाइन जो रेखा जो होता है उसका ऊपर अगर ला सकते हैं, तो हमारी जनरेशन में भारत एक डेवलप्ड एडवांस्ड कंट्री हो जाएगा। इसी के साथ उड़ीसा राज्य देश के प्रगतिशील राज्यों में शामिल हो, इसके प्रति भी आप कार्यरत हैं। उड़ीसा के विकास के लिए हम तो बहुत कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा, अब देखिए, पिछले 2 साल में इतिहास में पहली बार उड़ीसा की जीडीपी ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा हुई है। 2 साल में तो सब कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन अगर ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट हम अभी अचीव कर सके हैं, इसको अगर 10, 15, 20 साल तक हम जारी रख सकते हैं, तो उड़ीसा विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्टेट्स इन द कंट्री। देश के लोकाभिमुख युवकों को राजनीति द्वारा समाज सेवा करने की प्रेरणा मिले, इसी हेतु श्री बैजंत पांडा को भारत अस्मिता जन प्रतिनिधि श्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान करते हुए हम आनंद तथा समाधान महसूस करते हैं। Let us welcome Mr. Panda for the award. अब मैं मुख्य अतिथि महोदय शेषन साहब और कराट साहब से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपने स्थान ग्रहण कर लें। I know all these awardees definitely want to share their feelings with us
और अब मैं निमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमन सिंह जी को, जो अपने विचार, अपनी भावनाएं इस